Hello, good morning, student. Good morning, sir. Yes, good morning. Where are other students? Only three students are present. I don't know, sir. आपने तो कल ही मैसेज कर दिया था ग्रुप Hello. में. Good morning, student. गुड मॉर्निंग सर, बट आपने कल मैसेज कर दिया था ना कि आज लेक्चर है. पता नहीं क्यों नहीं आए सब लोग. Okay. Okay, we will start now. Related theory page. I already sent a PDF, right? Uh, that is related unit 1. So you can see the TechMax book that's related to make the notes. So I want to continue that part. How to write the you have to sort out all important questions, and then after that you have to start making the notes. You highlight the books and then directly you prepare for the exam. Okay, so you know the paper patterns related in unit 1. We are getting the 6 yes, unit 1 6, unit 2 6, and out of 6 you have to write the three answers. This is the paper pattern we have, right? So we have to prepare for the questions. That's why I send the PDF. So एक एक unit का PDF I will send you one by one. I will see that I getting the time. That time I send you PDF. Now unit 1 already I sent. Next time I send unit 2, unit 3. So already we have done up to unit 3. Now unit 3, our error logging part, it is going on, right? Error logging and all that. So that part I have to clear. But first of all, I want to see that first unit theory part, it is over or not. Okay, then I can go for the next. Yes, student. Yes, sir. Yeah. Okay, fine. So again, welcome back. Dr. Babasaheb Ambedkar Mahavidyalaya Vasai West TYBSAIT 5th Sem. Subject in Advanced Web Programming. Your third unit now it is going on. Second unit it is completed. Last part it is there related to exceptional handling, logging, that we have to complete. We have already completed the master page, but we have to do the next thing related web control, and that we have to see afterwards. Now after that unit 4 also we have done somewhat, that is database connectivity. So we have to go through the textbook. So please see that textbook of unit 1. In unit 1 we have this is the syllables they are given: the .NET framework, C Sharp, VB, .NET language, common language, and .NET class library, and then C Sharp basic part: variable, data type, variable operation, object oriented, conditional logic, loops, and methods in the chapter 1. In the chapter, and there are second chapters, same unit, we have the different syllables is there. The first upon we go through that all part. Okay, so today we have to just revise all that thing. हम लोग आज रिवाइज करेंगे थ्योरी का क्या क्या हमारा हुआ है. सो प्लीज लिसन केयरफुली नाउ. ओके, चलो कंटिन्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, .NET framework architecture. What is .NET framework? Suppose they will ask you write the short notes on related .NET framework. So we have to write about that .NET framework. What is? So it is a platform created by Microsoft for developing application. एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे आप कोई भी लैंग्वेज में एप्लीकेशन क्रिएट करते हो, डेवलप करते हो, उसको शो करने के लिए या कंपाइल करके एक साथ एग्जीक्यूट करने के लिए वी रिक्वायर द .NET फ्रेमवर्क. इट इज रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर. सो माइक्रोसॉफ्ट के लिए बनाया हुआ है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने अलग अलग प्लेटफॉर्म के लैंग्वेज के कोड एक साथ कंपाइल करके आपको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ऐसा प्लेटफॉर्म जो बनाया है वो .NET फ्रेमवर्क. इसीलिए जब भी हमारा 12th का ऑनलाइन एग्जाम या अभी ना ऑनलाइन एग्जाम्स होगा तो उसके लिए वी रिक्वायर इन विंडोज .NET फ्रेमवर्क. ओके, so it consists of primarily gigantic library of code that is used in the client language like C Sharp.
हम लोग ने इसके लिए कुछ लाइब्रेरी ऑफ कोड बनाया हुआ है एंड इट इज अ एवरीवेयर इट इज अ सेम, मतलब यहाँ पे हम लोग हाँ ओके आई एम शेयरिंग दैट स्क्रीन, या सी दैट ना आपका इट कंसिस्ट ऑफ दैट व्हाट लाइब्रेरी कोड। तो वो लाइब्रेरी कोड क्या है, तो लाइब्रेरी कोड मतलब जैसे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स कीवर्ड्स सिंटैक्स ऑपी फॉर वगैरह आपके कंपाइलर में यूज किया है और दे आर यूजिंग लाइब्रेरी, इसलिए हम लोग लाइब्रेरी डिक्लेयर करते हैं यूजिंग सिस्टम यूजिंग, जैसे हम लोग वो यूज करते हैं वैसे ही उसके ऑब्जेक्ट हम लोग यूज करना या फंक्शन मेथड यूज करना प्रॉपर्टी यूज करना चालू करते हैं कोडिंग में। सो दैट्स व्हाई इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी गिग्नेटिक लाइब्रेरी, मतलब बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई है फॉर जस्ट लाइक क्लाइंट लैंग्वेज सी शार्प डॉट नेट एंड ऑल। इट ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग एंड रनिंग इन एडवांस एप्लीकेशंस। आपके आगे के जो वेबसाइट रिलेटेड एप्लीकेशंस एग्जीक्यूट करने हैं उसके लिए इट बिल्डिंग एंड रनिंग द advanced applications with this .NET framework. So it has the two major components. इसके अंदर दो major component है, एक common language runtime और .NET framework है। तो आपको ये .NET framework explain करते वक्त पहले दो लाइन बताने पड़ेंगे। It is a platform created by Microsoft for developing application. It has large amount of library of code and it is used in client language like C Sharp, okay, and it using OOP concepts. After that you also it is also helps in building and running the advanced application, and then you also it has a two component, that is a CLR common language runtime and .NET framework class library. Then you have to say about the common language. What in common language runtime, एक ही प्लेटफॉर्म में हम लोग बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज को कंपाइल करके यूज कर सकते, कोडिंग यूज कर सकते एक ही प्रोग्राम में। So it is a foundation of .NET framework. It helps to manage the code during execution. Already मैंने बताया .NET framework किसके लिए help करता है, कोड execute करने के लिए। So this is the heart of .NET framework. Of course, CLR is the heart of the .NET framework. So you have to write just this sentence. It is the foundation of .NET framework. It helps to manage the code running execution. It manages memory, thread execution, code execution, code safety verification, compilation and system services। क्या क्या मैनेज करता है CLR? तो CLR आपको मेमोरी मैनेज कर रहा है, एग्जीक्यूशन मैनेज कर रहा है, कोड एग्जीक्यूशन, थ्रेड एग्जीक्यूशन, इवन सेफ्टी वेरिफिकेशन ऑफ द कोड, आपका एरर हैंडलिंग डिबगिंग पार्ट, कंपाइलेशन भी खुद कर रहा है, एंड देन सिस्टम सर्विसेज के रिलेटेड जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज आपको प्रोवाइड, प्रिंट एंड ऑल प्रिंटर स्काउट कमांड इज अवेलेबल in the common language runtime. So it is used to eliminate many common software issues, also accelerate the development। जैसे हम लोग स्टैंड अलोन कुछ यूज करते हैं तो वो पार्ट दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता नहीं है, तो हम लोग को उसको सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करना पड़ता है। बट इन विंडोज they use .NET framework, that means any language of code we can see easily when you are using the .NET framework. So this is the CLR common language runtime। और क्लास लाइब्रेरी के बारे में ऑलरेडी हम लोग ने बताया हुआ है, फिर भी वी आर जस्ट गोइंग थ्रू दैट। इट कंटेन्स लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइब्रेरी टू रीयूजेबल टाइप्स, क्लासेस, इंटरफेसेस। हम लोग रीयूज कर सकते हैं, जो भी हम लोग बनाते हैं क्लास फाइल उसको रीयूज कर सकते हैं, टाइप्स रीयूज कर सकते हैं, इंटरफेसिंग रीयूज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर एन्यूमरेशन खुद के डेटा टाइप बनाया हुआ, सो विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड टाइप्स। और सबको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप्स। इट इज जस्ट वन टाइप, जैसे INT फ्लोट स्ट्रिंग वगैरह हम लोग डिक्लेयर करते हैं, दैट इज टाइप। उसकी तरह क्लास को ऑब्जेक्ट बना के वी आर यूजिंग एज अ टाइप एंड इट बिकम्स ह्यूज लाइब्रेरी। सो ये लाइब्रेरी हम लोग को रन टाइम फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर देयर। एक जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जो कंपाइलर तुरंत रीड करता है जस्ट इन टाइम, मतलब रन टाइम में ही रन करता है। सो व्हेन कोड दैट यूजेस, जो कोड यूज होगा इट विल कंपाइल, operating system specify that native code, it is not immediately created, वो specify नोट और हम लोग को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और after that it is a intermediate language code, तो JIT just in time compiler। उसके बाद CLS मतलब common language specification। So there are set of rules issued by the Microsoft ने कुछ
सेट रूल बनाए हुए इट शुड मीट क्वालिफाई एज अ .NET कंपाइलर, तो .NET से क्वालिफाइड होनी चाहिए। तो इसलिए इंटरमीडिएट लैंग्वेज मतलब दो अलग अलग लैंग्वेज के कोड जैसे C# या C++ या जावास्क्रिप्ट एक साथ आ जाते हैं, तो एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज का कोड होना चाहिए। इसलिए कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिक, तो हम लोग ऊपर स्पेसिफाई करते हैं वी आर यूजिंग MySQL, तो वी आर यूजिंग system.sql.data, तो हम लोग स्पेसिफिकेशन करते हैं एंड देन इट इज रूल्स के हिसाब से कंपाइलर .NET फ्रेमवर्क में वो ऐड हो रहा है एंड देन वी आर यूजिंग देयर कोड। जैसे SQL का सिलेक्ट स्टेटमेंट या आपका क्वेरी जो भी डिलीट अपडेट क्वेरी, दैट वी कैन यूज इट इन द .NET कमांड कोड में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं, ऊपर स्पेसिफाई किया और उसके कोड हम लोग यूज कर रहे हैं। दिस इज इंटरमीडिएट लैंग्वेज वी कैन यूज। तो CLS हो गया, JIT CLS, और एक गार्बेज कलेक्टर जो डेटा टाइप लॉन्गर यूज नहीं हो रहा है, कोडिंग ज्यादा यूज नहीं हो रहा है, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल प्रोवाइड इन द .NET। वो क्या हो जाता है, गार्बेज, इट फ्री अप द मेमोरी ऑटोमेटिकली। जो कोड लॉन्गर या जो ऑब्जेक्ट ज्यादा यूज नहीं हो रहे वो मेमोरी से फ्री हो जाता है। इट फ्री अप द मेमोरी यूज बाय एप्लीकेशन इज फ्रीड अप completely when the application is no longer in use. So periodical inspection of the memory of the computer is done and it removes anything from it that is no longer needed. जो आप लोग को ज्यादा जरूरत नहीं, अपने आप वो कंपाइलर क्या करता है, गार्बेज कलेक्ट करके रखता है। ओके, दैट इज कॉल्ड गार्बेज। तो तीन पार्ट के कंपोनेंट में क्लास लाइब्रेरी डिवाइड हुआ है, JIT CLS कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन एंड गार्बेज कलेक्टर। क्लियर? यस स्टूडेंट? Yes, sir. Hello. Yes, sir. So this is the just graph parts they are include of the related आपके .NET framework में क्या क्या लैंग्वेज आते हैं। VB.NET, C# आता है, JavaScript, JScript आता है, .NET लैंग्वेज। फिर उन्होंने बताया ये सारे चीजें, ये लैंग्वेज के कॉमन लैंग्वेज इंटरमीडिएट लैंग्वेज है। फिर कॉमन टाइप आ जाता है, जो इंटीजर फ्लोट वगैरह सब कुछ कॉमन टाइप यूज करते हैं। So that is in the one library, huge library. So they are in class foundations. So foundation of the class is from the .class library. And then ASP.NET में हम लोग काम करते हैं वो है वेब फॉर्म, XML, वेब सर्विसेज। इट इज रिलेटेड टू विंडोज फॉर्म या कंसोल एप्लीकेशन भी हो सकते हैं। ASP.NET में हम लोग क्या बनाते हैं, एक तो फॉर्म, विंडोज या कंसोल एप्लीकेशन। अदरवाइज वी आर कनेक्टिव विद द SQL। अगर ADO.NET, एक्टिविस्ट डेटा ऑब्जेक्ट .NET कनेक्टिविटी करते हैं ADO.NET से, तो DBMM से कनेक्ट करते हैं और डेटाबेस से रिलेटेड हम लोग सूच सर्विसेज ले सकते हैं। इवन .NET रिमोटिंग, दैट इज रिमोटिंग सर्वर, हम लोग रिमोटिंग कोड भी लिख सकते हैं, जैसे गूगल को कनेक्टिविटी करना, फेसबुक को ट्विटर को कनेक्ट करना, लाइक दैट। आफ्टर दिस आर ऑल थिंग्स आर इन द कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, so these are all given just in time, garbage color, security and all, and it is in the one infrastructure CLI with the operating system of Windows। ओके, तो विंडोज में ये माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी सॉफ्टवेयर के लैंग्वेज है वो हम लोग एक साथ .NET फ्रेमवर्क में कंपाइलर कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं, डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। दिस इज द .NET फ्रेमवर्क। गॉट इट? Yes, यस sir. Sir. स्टूडेंट? Yes, sir. हाँ बोलिए, बोलिए। सर, अगर एग्जाम में जैसे हम लोग को ये क्वेश्चंस आया तो ये डायग्राम बनाना जरूरी है, कंपलसरी है ये ग्राफ? ऑफ कोर्स, ये या ग्राफ बनाएंगे तो ही तो मार्क्स इंक्लूड होगे ना। जैसे हम लोग ने लिखा तो ये ग्राफ नहीं बनाया चलेगा, इसके बारे में हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन हम लोग जब एक साथ व्यू कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा ऐसे बॉक्स बना के उसके अंदर दिखाओगे तो इट इज एग्जीक्यूटेबल। जितना आप ओके सर। डायग्रामेटिकल एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे उतना आपको एक मार्क्स रिजर्व होगा। ठीक है, ओके सर। फाइन। Now metadata and assemblies is given over there. After that, metadata आपको पता है, metadata मतलब large documentation part. So the binary information describes the program which is either stored in a portable executable in the memory or assembly. So the logical unit consists assembly manifest type data, intermediate language code and set of resources like image file. ये हमारा assembly file होता है, और assembly file कहाँ पे होता है, तो web.configuration, हमारी जो web.configuration file है उसके अंदर metadata assembly file रेडी हो जाती है, और उस फाइल में हम लोग को काम रहता है विंडोज फॉर्म में। इट कंटेन्स द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी विंडो डिस्प्लेड इन द एप्लीकेशन, जिसके अंदर हम लोग दूसरे दूसरे विंडो कॉल कर सकते हैं, लॉगिन का विंडो, डेटा का विंडो। अभी लास्ट टाइम डेटा लिस्ट देखा तो ऐसे हम लोग ने उस टाइम ट्री व्यू देखा, तो ये सारे कैलेंडर देखा,
So these are all control we are include in the one Windows file. It is a graphical representation of any window. उसके बाद ADO.NET ये भी बताया आपको .NET की आपको कनेक्टिविटी विद द SQL सर्वर, OLE डेटाबेस, XML करना होगा तो we have to use ADO. It is a technology used for working with the data and database. डेटा और डेटाबेस के साथ आपको कुछ रिलेशनशिप करके कनेक्टिविटी करके आपको बैकएंड रिलेटेड फ्रंट में आपको लाना है, रिकॉर्ड्स वगैरह दिखाना है, क्वेरी दिखाना है, मैनिपुलेट करना है. We have to use the ADO.NET. It allows connections to the data sources for retrieving, manipulating and updating data. ये क्या काम करता है? तो सेम जो डेटाबेस काम करता है. It allows data source for retrieving, accessing the database, manipulating, select, insert, delete, and updating the data. WF. WF, that is Windows Workflow Foundation. So it helps building workflow. जब हम लोग कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसका वर्कफ्लो होता है. वर्कफ्लो मतलब मॉड्यूल्स होते हैं. मॉड्यूल्स में एक्टिविटीज होते हैं, वर्कफ्लो रन टाइम होता है, वर्कफ्लो डिजाइनिंग होता है. तो हम लोग सब पार्ट देखो, दो पार्ट में हम लोग तो कोड देखते ही देखते, एक डिजाइन और एक कोड. इसलिए हम लोग को दो फाइल अलग अलग होते हैं. डिजाइन का फाइल अलग होता है और C# का कोडिंग का फाइल अलग. इवन इन द डॉक्यूमेंटेशन वेब कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता है. डेटा ज्वाइन किया तो एप्लीकेशन डेटा का फोल्डर रेडी हो जाता है. दिस आर ऑल आर डिफरेंट फोल्डर्स दे क्रिएटेड ऑटोमेटिकली इनसाइड. व्हेन आपने अगर लोकेशन ऑफ द फाइल देखा ना, उसमें बहुत दूसरे फोल्डर अपने आप आ जाते हैं. दैट इज वर्कफ्लो फाउंडेशन. उन्होंने अपना खुद का स्ट्रक्चर्स जो फाइल बनाने के बाद, जैसे मैंने डेटाबेस कनेक्ट किया तो अपने आप वो फोल्डर एप्लीकेशन डेटा फोल्डर बना देगा. आप जब फाइल के अंदर पर्टिकुलर लोकेशन में जाओगे फाइल के, तो आपको वो सब दिखाई देगा. तो इसका मतलब दे मेक द स्ट्रक्चर वेयर टू स्टोर योर एग्जीक्यूटिव फाइल. आपके डेटाबेस की फाइल उधर जाएगी, C# की फाइल, आपकी कोडिंग की फाइल, विंडोज की फाइल, वेब कॉन्फ़िगरेशन की फाइल पर्टिकुलर फोल्डर में इंक्लूड होती है. ओके, सो दिस इज द रिलेटेड टू योर मेटा assemblies, Windows form and workflow ADO.NET. Now they introduce the C#. What is C#? C# is a simple, modern, object-oriented, type-set language. ये definition है. C# is a simple, modern, object-oriented and type-set language. It contains many features like नए features कुछ आए, delegate, indexer, properties. इसलिए हम लोग delegates, interfacing use करते हैं. इवन इंडेक्सर यूज करते हैं, कभी इंडेक्स नेम यूज नहीं किया, लेकिन प्रॉपर्टीज मेथड्स वी आर यूजिंग. सो इट अ पार्ट ऑफ द सूट ऑफ प्रोडक्ट्स कॉल्ड विजुअल स्टूडियो .NET. ये विजुअल स्टूडियो .NET का एक पार्ट है. C# इज अ वन पार्ट. उसके अंदर विजुअल C# है, फिर उसके बाद आपका क्या बोलते हैं J++ है, या आपका C# अलग से VB.NET है. तो ये विजुअल स्टूडियो एक पैकेज में आया हुआ है और उस पैकेज में एक पार्ट है C#. So it is a simple, modern, object-oriented typeset language. But a constant. Constant are values that do not change during program execution. It is divided into two types, numeric and character data. So numeric and character. तो हम लोग constant मालूम है, हम लोग numeric होता है, character quotes में लिखते हैं, single inverted में एक character, double inverted में strings, more than one character, point wise data number का ले सकते हैं, decimal point. So this is constant and variable. So how to declare constant? कैसे declare करते हैं देखो. Constant is keyword, फिर data type, फिर variable name equal to value. Example दिया है, constant int b is equal to 100. इस तरह हम लोग constant. Variables के rule दिए, they are identifier which can change during program execution. Variable assigns the value, right? So value are assigned in a variable using equal sign. हम लोग को एक variable का example है, data type and variable. int is data type, x is equal to 20. Keywords, of course, keywords means code. Predefined reserved words, इसको बोलते हैं predefined reserved word. Already आपके header file में, library file में उसको reserve रखा हुआ है. That we cannot use as a variable name. Okay, so words that have special meaning to the compiler, उसका special meaning होता है. They cannot be used as a identifier. हम लोग कोई भी function का, class का नाम, method का नाम as a keyword हम लोग यूज नहीं कर सकते. एज अ कीवर्ड नहीं हो. कीवर्ड का यूज करना मतलब आप कोड इफ करके हम लोग वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते, फॉर करके नहीं दे सकते, बिकॉज इट इज ऑलरेडी रिजर्व वर्ड्स फॉर कोडिंग. ओके, सो दे कैन नॉट बी यूज आइडेंटिफाई इन प्रोग्राम अनलेस दे आर प्रीफिक्स. हाँ, अगर यूज करना है, जैसे इफ को यूज करना है
फॉर तो उसके आगे एट द रेट ऑफ प्रीफिक्स करना। जैसे एग्जांपल दिया है, एट द रेट ऑफ फॉर कैन बी यूज एज आइडेंटिफायर। एट द रेट ऑफ से आपका कीवर्ड चेंज होता है, वो अलग से वेरिएबल नाम बन जाता है। तो कोई भी कीवर्ड अगर आपको रिजर्व रखना है, सी शार्प में स्पेशल फैसिलिटी दी है, यू हैव टू प्रीफिक्स विद द एट द रेट ऑफ। पहले एट द रेट ऑफ लिखोगे, फिर वो कीवर्ड लिखोगे, तो इट बिकम्स एज अ आइडेंटिफायर। गॉट इट स्टूडेंट? हेलो? यस सर। ओके, सो कंटिन्यू। डेटा टाइप, ऑलरेडी हम लोग को डेटा टाइप के बारे में मालूम है। ऑलवेज व्हेन यू डिक्लेयर वेरिएबल, बिफोर दैट यू स्पेसिफाई द डेटा टाइप, सो दैट range we can use in to assign the value. So there is the data type tells a C# compiler what kind of value variable can hold. डेटा टाइप बताता है कि आप उस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू होल्ड करके रखने वाले। So it includes main build data type for different kind of data. String, it includes the more than one character. Number, it includes the digits 0 to 9. Float, it includes the decimal point. Decimal also included, but range are different. तो उन्होंने डेटा टाइप और कुछ रेंज दी है। जैसे बाइट, बाइट अनसाइन इंटीजर है, 0 to 255 हम लोग बाइट, 1 कैरेक्टर 1 बाइट, 8 बिट्स का बाइट होगा। फिर एस बाइट, साइन इंटीजर -1 DDR, INT32, that is INT32 is a data type, ये .NET के data type है, it is not a C++ data type, it is a .NET data। INT32 that is sign integer, 32 बिट्स का मतलब 32 बिट्स मतलब कितना होगा, 4 बाइट्स का डेटा हम लोग लिख सकते हैं, जो रेंज हमारा उधर भी था C++ में भी था, वैसे ही लॉन्ग INT के लिए। फिर UINT, UINT मतलब अनसाइन, अनसाइन मतलब ओनली पॉजिटिव नंबर 0 to, वो भी 4 बाइट है, 0 to 4 to 9, 4 9 6 7 to 9। उसके बाद आपको दिया INT16, अगर शॉर्ट करना है तो 2 बाइट्स का भी कर सकते हैं। 2 बाइट्स का डेटा आपका रेंज अगेन माइनस, जैसे हम लोग का C++ देगा -2 3276 to 3276। फिर UINT अनसाइन 0 to 65,000, 0 से नेगेटिव नंबर, अनसाइन लिखा मतलब इट इज पॉजिटिव। फिर INT64 भी दिया है, देखो 8 बाइट्स का भी दिया है। UINT मतलब INT के ही 3 टाइप है, 16, INT16, INT32, INT64, वो भी उसमें भी UINT अनसाइंड हो गया। ओके, नेक्स्ट सिंगल, सिंगल आपको डेसिमल पॉइंट लिखने के लिए फ्लोट नहीं है, यहाँ सिंगल करके, तो दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट। सिंगल फ्लोटिंग पॉइंट 4 बाइट, -3.4 द एक्सपोनेंट, इसमें 6 डेसिमल इंक्लूड कर सकते हैं। डबल, देयर वी कैन इंक्लूड 30 सॉरी 6 की जगह 9 डेसिमल वी कैन यूज डबल। ओके, डबल में तो यहाँ 64 बिट दिया हुआ, सिंगल डबल 6 डेसिमल, ओके यस 6 डेसिमल 9 डेसिमल एंड 15 डेसिमल आ रहा। तो पहले 6 डेसिमल, 6 डेसिमल में इतने सारे आते हैं, एक्सपोनेंट 38। नेक्स्ट, ये वैल्यू आपको साइंटिफिक वैल्यू है, जब मोर देन 9-10 डिजिट्स हो जाता है तो ई आता है, ई मतलब एक्सपोनेंट होता है। सिंगल हो गया डेसिमल, डबल हो गया डेसिमल, वो 8 बाइट का हो गया। फिर कैरेक्टर, कैर 8 दिया, देखो कैरेक्टर यूनिकोड सिंबल है, इसीलिए उन्होंने 2 बाइट का लिया है। 2 बाइट क्यों, तो मराठी, हिंदी, गुजराती, अदर लैंग्वेज चाइनीज, उसका भी कैरेक्टर हो सकता है, इसके लिए यूनिकोड कैरेक्टर सिस्टम। आगे बुलियन दिया है, बुलियन मतलब लॉजिकल ट्रू और फॉल्स, दे आर गिवन 1 बाइट। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बेस्ड भी दिया है, ऑब्जेक्ट मतलब एज ए इमेज, इट इज ऑब्जेक्ट, इमेज लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ऑब्जेक्ट इमेज के लिए स्पेशली इमेज इंसर्ट करने के लिए आप लोग को एज अ ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ता है। स्ट्रिंग, string more than one character, sequence of character, and decimal, again there is in 29 significant digits we can use over there। the decimal number with the 29 digits, 29 के साथ आप 15 डेसिमल यूज कर सकते हो उसके अंदर, 15। ठीक है, नेक्स्ट डेट टाइम, डेट टाइम का फॉर्मेट दिया हुआ है। ओके, MMDDYY, इट इज योर अमेरिकन फॉर्मेट, दे आर गिवन रिप्रेजेंट द डेट एंड टाइम। तो डेट टाइम में हमारा डेट और टाइम दोनों दिखाई देगा, HH:MM:SS एंड डेट। बुलियन, बुलियन ऑलरेडी इट इज लॉजिकल बुलियन, ट्रू और फॉल्स। ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग ऑलरेडी हो गया, डेसिमल ये दोबारा उन्होंने दिया है, इट इज बाय मिस्टेकली प्रिंटेड। Now next thing, operator. Now you got about the data type. Data type clear हो गया? Yes. I just revise. मैं यूनिट 1 रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको अभी थ्योरी लिखना चालू करो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सेंड करता हूँ, उससे प्रिपरेशन करना चालू करो। अभी नोट्स बनाने चालू होंगे और आपके 3 यूनिट आपके हो चुके हैं,
बस 3 यूनिट 2-3 उधर तो 1-2 पॉइंट रह गए, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे और यूनिट 3 तक आ। यूनिट 3 के हमारा चौथा भी यूनिट चालू है, डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ ऑलरेडी हुआ है, तो वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। 3 यूनिट मतलब बहुत सारा आपका प्रिपेयर्ड है, तो हम लोग को 3 यूनिट का थ्योरी तो जानना है, थ्योरी लिखने के लिए आता है, तो इसलिए हम लोग वी आर प्रिपेयरिंग ऑल दैट। चलो नेक्स्ट, ऑपरेटर। Already we done in the C++, there are arithmetic operator, relational operator, logical operator, assignment operator and conditional ternary operator, that is conditional question mark wala, if loop if else wala, that is conditional operator. तो पहला operator arithmetic में ज्यादा कुछ लूंगा नहीं। This operator we are using to do the calculate, perform action on numeric values, plus, addition, minus, subtraction, asterisk sign, multiplication, divide, slash and remainder. If you want to find the remainder, there is a modulus. Next, increment operator, plus plus, increment the value by 1, x plus plus, that means it show the value and after that it increment by 1. Before prefix and postfix, अगर आपने पहले plus plus लिखा तो it increment first and then it show the value. Decrement minus minus, a minus minus, it show the value and after that it decrement by 1. So this is your increment and decrement operator. After that they are given relational operator. We want to compare the two variables, two values, तो हम लोग को उसको equal equal, यानी कि a equal to b, so a compare with the b and a value and b value is equal, then it is true, otherwise it is false. Not equal to opposite, a exclamation equal to b, that it returns if the both values are different. कभी not equal रहेगा तो true, तो otherwise it is false. Less than, greater than, less than, a greater than b, a less than b, a less than and equal to, यहाँ दोनों कंडीशन less than भी होगा equal होगा तो true, otherwise false. ऐसे रिलेशनल ऑपरेटर है, greater than, equal to. After that logical operator, ये भी हमारे हो चुके हैं. There are two conditionals are there, and or, okay, and not, and or and not, that is your लॉजिकली दो कंडीशन को ट्रू होगा तो ट्रू होगा, तो दो कंडीशन जस्ट लाइक इफ योर एज इज ग्रेटर देन 18 एंड यू आर इंडियन, योर नेशनलिटी इज इक्वल टू इंडियन, ये दो कंडीशन ट्रू रहेंगे तो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो यहाँ दो कंडीशन को ट्रू करना है तो बीच में एंड है, दैट इज लॉजिकली टू, एक साथ दो कंडीशन डालेंगे और दोनों कंडीशन ट्रू रहेंगे तो वैल्यू ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, इसीलिए एंड है। लॉजिकली और any one condition is true, we are getting the answer true, so that is or आपका पाइप साइन होता है, not exclamation, अगर आपका कंडीशन फॉल्स है मतलब वैल्यू फॉल्स आया तो ही ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ऐसे करके आपका लॉजिक। नाउ असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, सिंपल असाइनमेंट, कंपाउंड असाइनमेंट, ऑफ कोर्स असाइनमेंट मतलब इक्वल साइन इज अ सिंपल assigning I equal to 100, that means I assigns the 100 value, लेकिन I plus equal 5, इसका मतलब है I is equal to I plus 5, I is equal to I, यहाँ दिया भी है A plus equal 5, that means A plus 5, तो A को प्लस और इक्वल, दिस इज अ डबल, आपको दो ऑपरेटर दिख रहे हैं प्लस इक्वल, इसी का मतलब है पहले इक्वल साइन आएगा A इक्वल, फिर प्लस साइन A प्लस 5, A के वैल्यू के अंदर और प्लस 5 वैसे ए माइनस इक्वल, ए इंटू इक्वल, ए डिवाइड इक्वल, ए परसेंटेज इक्वल, दिस आर ऑल कंपाउंड असाइन। नाउ कंडीशनल और टर्मिनल, उसमें कंडीशनल क्वेश्चन मार्क दिया, देखो यहाँ बताया भी एग्जांपल में, C इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क, ए अदरवाइज बी, कोलन बी, इसका मतलब है ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन बी रहेगी ट्रू होगा तो ए शो करेगा, नहीं तो बी शो करेगा और सी के अंदर वो वैल्यू असाइन होगा। So this is that conditional or ternary. Next, bitwise operator, कुछ हमारा कंट्रोल bitwise में करना होगा तो ये सारे bitwise operator है, it evaluate and manipulate of specific bits within an integer, and bitwise or bitwise exclusive or, आपको पता है लॉजिकल एंड हमारे नॉट गेट, एंड गेट, और गेट में होता है, जो हम लोगों ने 80-85 में सीखा, वही यहाँ पे यूज होगा, एक्सक्लूसिव और एंड, shifting the bits, left shift and right shift, complement of the, that is negation answer, तो ये सारी चीजें आपको bitwise ऑपरेटर। फिर टाइप कास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन ऑफ द टाइप, इंटीजर को फ्लोट करना है, फ्लोट को डबल करना है, तो कन्वर्जन भी रिक्वायर,
So there are two types of conversion or casting: implicit and explicit conversion. Okay, so it is necessary to convert data from one type to another can be achieved through the type casting. So there will be possibility of loss of data when larger data types are cast and onto a smaller. तो हम लोग को बड़ा डेटा छोटे डेटा के लिए अंदर कन्वर्ट करने के लिए मुझे इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट कन्वर्जन लगेगा. तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है? सिंपल दिया है, कन्वर्जन वेयर देयर इज अ नो लॉस ऑफ डेटा, जिसके अंदर वैल्यू डेटा लॉस नहीं होता है, उस कन्वर्जन को हम लोग इम्प्लिसिट बोलते हैं. इट इज ऑलवेज स्मॉलर डेटा टाइप टू लार्जर, छोटे से बड़ा. जैसे आईएनटी से सिंगल जाएगा, सिंगल से डबल जाएगा, डबल से डेसिमल हो सकता है, इसलिए उन्होंने उधर दिया है एस बाइट कैसे होगा. शॉर्ट पहले आएगा, फिर आईएनटी, फिर लॉन्ग, फिर फ्लोट, फिर डबल, फिर डेसिमल. ऐसे लाइन से करोगे तो इट इज इम्प्लिसिट कन्वर्जन, डायरेक्टली कन्वर्जन. और बाइट का भी दिया है, देखो एस शॉर्ट, यू शॉर्ट, आईएनटी, यू आईएनटी, लॉन्ग, यू लॉन्ग. तो ये उन्होंने प्रिसीजन बताया हुआ. वैसे ही शॉर्ट है, देखो यहाँ पे सारे आपको दिखाए कैसे करने हैं वो बताया है. तो उसका इम्प्लिसिट कन्वर्जन, लॉन्ग का फ्लोट होगा, फ्लोट का लॉन्ग नहीं होगा, लॉन्ग का फ्लोट, फ्लोट का डबल, डबल का डेसिमल होगा. ओके, इस तरह लाइन से आप कर सकते हो, तो उसी को हम लोग इम्प्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं, डायरेक्ट कन्वर्जन. लेकिन अगर एक्सप्लिसिट करना होगा तो एक कीवर्ड है कन्वर्ट, डॉट, उसकी प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के डॉट प्रॉपर्टीज आएगी, टू बुलिन, टू बाइट, टू कैर, टू डेसिमल, टू डबल, टू आईएनटी ऑफ वेरिएबल नेम. तो उसका कन्वर्टर एक्सप्लिसिटली कर सकते हैं. तो कन्वर्टिंग फ्रॉम लार्जर डेटा टाइप टू स्मॉलर ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो, हम लोग ने आईएनटी एन लिया है, इट इज इक्वल टू आईएनटी एन इज द स्मॉलेस्ट, स्मॉलर नंबर. कन्वर्ट टू आईएनटी 16, तो 16 का 12, मतलब हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं 16 कन्वर्ट. अगर आईएनटी 4 बाइट का है और हम लोग को 2 बाइट में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग यूज कर रहे हैं कन्वर्ट डॉट टू आईएनटी 16, ब्रैकेट के अंदर जो भी कोट्स के अंदर वैल्यू रहेगा, वेरिएबल रहेगा, उसको स्पेसिफाई. इट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू आईएनटी. 12 इज अ स्ट्रिंग. कैसे क्या पता चला 12 स्ट्रिंग? कि कोट्स के अंदर लिखा है. कोट्स के अंदर जो भी लिखोगे वो नंबर वैल्यू भी डिजिट्स बन सकता है जब आप कन्वर्जन करें. स्ट्रिंग वैल्यू कन्वर्ट इनटू इंटीजर. जैसे टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू ऑलवेज हम लोग लेते हैं, तो वो टेक्स्ट वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू होता है, और उसको हमेशा हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ता है. तब ये कमांड आएगी, कन्वर्ट डॉट टू आईएनटी 16, टू आईएनटी 32, टू आईएनटी 64. These are the commands. Got it? Yes, student. So all conversion part it is over. Yes, sir. Okay. Now operators are over. Conversion part it is over. Now object based manipulation. नया point आ गया. There object based मतलब पहले object क्या है? Object is a what? Class. Instance name is a object. We can say the when we are making the group of data and method together, it becomes the object. जैसे car object है, वैसे एक स्कूल ऑब्जेक्ट है, टीचर ऑब्जेक्ट है, वैसा ही यहाँ ऑब्जेक्ट का एक साथ हम लोग ग्रुप बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट होता है. इन दैट मैनिपुलेशन दे आर टेलिंग अबाउट. सो इन .NET is an object oriented to the core, and common data types have the built in a smart to handle. तो हम लोग को .NET object is a core, हमारा core है, बट यहाँ पे common data type handle करने के लिए we are using the basic operation over there, that is the object class. So we can manipulate strings, dates, number in the same way in a C#. जैसे C# में करते हुए, जैसे यहाँ पे दिया string, string s we are declaring. So to the best example of how class member can replace built-in function, जैसे built-in function में कैसे उन्होंने convert किया है बताया. देखो string s हम लोगों ने कुछ कोड्स के अंदर एक वैल्यू डिक्लेयर किया है ASP.NET C# प्रोग्राम, सेमीकोलन. फिर s को ट्रिम करना है, अगर आगे पीछे मैंने जगह छोड़ी है और उसको ट्रिम करना है. ट्रिम मीन्स व्हाट? इट हैज टू रिमूव लीडिंग स्पेसेस एंड एंडिंग स्पेसेस, दैट इज कॉल्ड ट्रिम. तो ट्रिम मतलब आगे के पीछे के जगह, अगर हम लोगों ने ज्यादा पीछे जगह छोड़ी है तो वो ट्रिम करके देगा. तो हम लोग कैसे कर रहे हैं? इनबिल्ट फंक्शन से कर रहे हैं. s इज इक्वल टू s डॉट ट्रिम, तो ऑटोमेटिकली वो स्पेस रिमूव हो गया. दूसरा s डॉट सबस्ट्रिंग, वी वांट टू एक्सट्रैक्ट द 3 कैरेक्टर. अगर हम लोग को 3 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं तो हम लोग यूज कर रहे हैं s डॉट सबस्ट्रिंग. s डॉट सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग इज अ इनबिल्ट फंक्शन. तो बिल्ट इन फंक्शन में से उन्होंने बताया स्टार्टिंग 0,
0 से 3 कैरेक्टर, तो पहले 3 कैरेक्टर एक आउटपुट देख सकते हो, ओपी लिखा है वो आउटपुट है एस। वैसे अपर केस में एस डॉट टू अपर, एस डॉट टू अपर मीन्स hello madam, I have the lectures now. Hello, I have the lecture, I can talk after 10:30. Okay, hello, hello. I have the lectures now, lecture is going on. My lecture is going on. Senior college. Hello, fine. टाइम टेबल ऑनलाइन का वही ना, हमारा पीडीएफ भेजा है वही। हेलो, पीडीएफ भेजा है ना? अच्छा, सीनियर कॉलेज के है ना, सीनियर कॉलेज को टाइम टेबल भेजा है, उनको टाइम टेबल दिया हुआ है। अगर चाहिए तो कौन से क्लास का है, कौन से क्लास का है, कौन से क्लास का है? ओके ठीक है, मैं फॉरवर्ड करता हूँ किसी को मिला, मैं अभी 10:30 के बाद करता हूँ, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू। Okay, anyway, now there are conversion to upper, s dot to upper, so we can see that asp अपर केस में आ गया, तो टू अपर इज अ रिकॉर्ड। लेकिन फंक्शंस में देख सकते हो आप, पहला लेटर कैपिटल, ट्रिम का टी, एस सबस्ट्रिंग का टू, यहाँ दो वर्ड है तो टी कैपिटल एंड यू कैपिटल, दो वर्ड्स के लिए पहला लेटर, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, ये आपको थोड़ा केयर है। नेक्स्ट, string members to upper, to lower, trim, trim end, trim start, pad left, pad right, insert, insert the text, remove, replace, start with, end with, index of, last index of, split. These are all the method string functions. This is inbuilt string members. Got it? Is that clear? ये आप थोड़े से आपको रीड करना है, हर एक का अलग अलग मीनिंग है। ट्रिम, रिमूव द स्पेसेस, ट्रिम एंड, ट्रिम स्टार्ट, स्टार्टिंग स्पेसेस रिमूव करना, एंडिंग स्पेसेस रिमूव करना। पैडिंग, दैट इज ऐड द स्पेसिफिक कैरेक्टर, अगर मुझे कुछ कैरेक्टर ऐड करना है उसके अंदर, एस्ट्रिक एस्ट्रिक एस्ट्रिक, स्लैश स्लैश स्लैश, तो वो पैड लेफ्ट पैड राइट कर सकते हो। इंसर्ट, इंसर्ट अनदर स्ट्रिंग, एक दूसरा स्ट्रिंग ऐड करना है, कोई दूसरी स्ट्रिंग को मर्ज करना है। रिमूव, कुछ स्ट्रिंग को रिमूव करना है। चेंजिंग, रिप्लेस, रिप्लेस द वर्ड, किसी वर्ड से रिप्लेस करना है। स्टार्ट विथ, एंड विथ, so that determine whether a string start end with the specified strings, जैसे सब स्ट्रिंग होता है वैसे ही। इंडेक्स ऑफ, इट फाइंड द जीरो बेस पोजीशन, लास्ट इंडेक्स ऑफ, हम लोग को इंडेक्सिंग। हेलो सर, कुछ अजीब आवाज आ रही है। व्हाट? आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ अजीब आवाज आ रही है। इसकी आवाज आ रही है, नहीं तो बात करो। हेलो हेलो, सर आपकी आवाज आ रहा है क्लियर? आ रही है सर आपकी आवाज, आ रही है सर आपकी आवाज अच्छी है। ओके ओके फाइन। तो चेक यूर प्रसाद, तुम्हारा माइक वापस निकाल के वापस चेक करो, नो इशू। ओके फाइन, कभी कभी होता है हेडफोन, फिर वापस उसको निकाल के कंटिन्यू करो, मेरा भी हो रहा है कभी कभी। ओके, सो स्प्लिट। आगे इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ इट शोइंग द पोजीशन, कैरेक्टर का पोजीशन बताएगा, वो कैरेक्टर कौन सा है, जीरो से इंडेक्स स्टार्ट होगा और कहाँ पे वो पोजीशन में आ रहा है, थर्ड कैरेक्टर फोर्थ कैरेक्टर वो बताएगा। स्प्लिट, इट स्प्लिट द टेक्स्ट, दो डिवाइड कर सकते हैं, एरे बना के उसको डिवाइड कर सकते हैं स्ट्रिंग को, दैट इज स्प्लिट, डिवाइड द स्ट्रिंग इनटू एरे ऑफ अ सबस्ट्रिंग। फिर नेक्स्ट डेटा मेंबर्स है डेट एंड टाइम का, तो डेट एंड टाइम में भी इनबिल्ट फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन लाइक दैट, डेट टाइम फाइंड करना है तो डेट टाइम करके है। फिर उसके बाद टाइम स्पैन, देखो यार डेट टाइम का एग्जांपल भी दिया है, यू वांट टू शो द डेट, तो हम लोग देख सकते हैं डेट टाइम ई, डेट टाइम डॉट नाउ, मतलब आज का डेट उसके अंदर स्टोर हो गया, किधर ई के अंदर, तो ई को हम लोग शो करेंगे तो आज का डेट एंड टाइम बताए। नाउ इट शो द डेट एंड टाइम ऑल्सो। देख ई डॉट एड डेज, एड डेज मतलब उसी के अंदर हम लोग डेज 100 डेज ऐड करना चाहते हैं, जो डेट टाइम मिला है उसी के अंदर 100 डेज ऐड करना। एड डेज इज ऑल्सो अनदर बिल्ट इन फंक्शन। ऐसे बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन मिलते हैं, जैसे ईयर कन्वर्जन करना है, उसके अंदर से ई डॉट ईयर डॉट टू स्ट्रिंग, मतलब उसमें से ईयर निकाला और कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में, एंड स्ट्रिंग वैल्यूज में ईयर मिल गया मुझे। ओके, ईयर वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू में मिला, तो ये सारी चीजें हमारे इनबिल्ट फंक्शन में आती है, डेट टाइम,
या एट डेज, ईयर, है ना। सो यहाँ पे सारे डेट टाइम के मेंबर्स भी बताए हुए हैं। ऐड, सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट टाइम स्पैन के अंदर हम लोग को ऐड करें। ईयर, डेट, मंथ, डे और मिनट, इट रिटर्न द पार्ट ऑफ द डेट एंड डेट एंड टाइम में से ईयर एक्सट्रैक्ट करेगा, डेट डे एक्सट्रैक्ट टाइम सॉरी डेट डिजिट एक्सट्रैक्ट करेगा, मंथ मंथ एक्सट्रैक्ट करेगा, डे वीक डे एक्सट्रैक्ट करेगा, हॉर्स एच मिनट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे आपके डेटा मेंबर है, डेट एंड टाइम, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ईयर, डेट, मंथ, डे एंड ऑल। टाइम स्पैन, उसके अंदर अगेन 2 डेज कितना टाइम स्पैन हुआ है टोटल, सो इट रिटर्न द टोटल वैल्यू ऑफ द करंट टाइम स्पैन, टोटल आवर्स कितने हुए हैं, टोटल डेज कितने हुए हैं, वो फाइंड आउट कर। एरे टाइप, हम लोग नेक्स्ट डेटा मेंबर में आ गए एरे टाइप में। ओके, तो हाँ टोटल मिनट सेकंड वो भी हो गया, वो भी एरे टाइप। अभी एरे टाइप क्या होता है, एक स्पेशल वेरिएबल, इट होल्ड्स द मेनी वैल्यूज, इसको एरे टाइप बोलते हैं। array is also have like object in the new world in the document, object की तरह यूज किया जाए। if you want to find out the size of one dimensional array, तो हम लोग क्या, you can use the length, तो हम लोग length की प्रॉपर्टी यूज करके मेथड यूज करें, या get length मेथड, so both have written the total number of elements in the array। यहाँ देख सकते हो array डिक्लेयर किया है, कैसे डिक्लेयर किया, int स्क्वायर ब्रैकेट है, ये जीरो नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, my array, किसी का माइक अनम्यूट है, म्यूट करो। ओके फाइन, सो int my array is equal to my array, ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, array वेरिएबल, इट इज नॉट अ ओनली वेरिएबल, array वेरिएबल, एंड वी अरेंज देयर 5 वैल्यू। तो देख सकते हो कर्ली ब्रैकेट में नंबर डाले तो 5 array का साइज हो गया। उसके अंदर अगर एरे का साइज फाइंड आउट करना है तो उन्होंने n लिया, n लिया और n के अंदर लिखा my array डॉट लेंथ, तो ये लेंथ फाइंड आउट कर रहा है एरे का, और आउटपुट में मुझे 5 मिलेगा। वैसे गेट अपर बाउंड में टू फाइंड द हाईएस्ट इंडेक्स नंबर, इसमें से हाईएस्ट इंडेक्स नंबर कौन सा है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, तो 5 इज योर हाईएस्ट इंडेक्स नंबर। गॉट इट। एरे के में और भी है कुछ डेटा मेंबर्स, सॉरी मेथड्स, get lower bound, get upper bound, clear the array, sort the array, sorting order में array, reverse उल्टा order में array दिखा, these are the all methods of the array। got it? So there are data member आपको बताए, सॉरी string member बताए, date and time member बताए, array member बताए, ये सारी member, तो ये सारा याद रखना। हम लोग को बिल्ट इन फंक्शन कुछ दिए थे और उस बिल्ट इन फंक्शन से हम लोग ने टाइप कास्टिंग भी देखा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट बेस्ड मैनिपुलेशन भी बताया, बिल्ट इन फंक्शन होता है। नाउ कंट्रोल फ्लो, ये भी हमारा हो चुका है, जस्ट रिवाइज कर रहा है। कंट्रोल फ्लो, that now in control flow in the C++ also we have seen there are selection statement, if statement, if else statement, if else if and switch case, these are the selection unit। अगर हम लोग को कोई भी वैल्यू को ट्रू और फॉल्स, अदरवाइज या ट्रू फॉल्स में चेक करना है, कंडीशन में देखना है, तो स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड ओनली इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड होगा तभी, तो पहले इफ स्टेटमेंट में सिंपल इफ योर कंडीशन इज दैट इफ एज इज ग्रेटर देन 18 ट्रू, यस देन यू कैन वोट, नो गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट एक सिंपल इफ में बना। वैसे ही इफ एल्स इफ, देखो आपको दिखा रहा है आपका आउटपुट में इफ एल्स भी बताया है, एक्सप्रेशन दिखा है, तो हम लोग को कभी अगर एक्सप्लेनेशन करने के लिए आया तो यू हैव टू राइट ऑल थिंग, यू हैव टू डिफाइन दैट। अगर सिलेक्शन स्टेटमेंट आया तो ये पूरा एक लाइन लिखना पड़ेगा, ये सब बताना पड़ेगा, और एक एक स्टेटमेंट विथ फ्लो चार्ट डायग्रामेटिकली और सिंटैक्स के साथ एक्सप्लेन करना। क्लियर? हेलो हेलो, यस सर। यस, ओके। एग्जांपल देखो, इफ x इज ग्रेटर देन 0 कंसोल डॉट राइट पॉजिटिव। हम लोग को पता है x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है मतलब वो पॉजिटिव है, तो कंसोल डॉट राइट में पॉजिटिव। वैसे इफ एल्स, सिंपल इफ की जगह इफ एल्स में क्या होता है कि वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, आइदर इफ वाला अंदर का स्टेटमेंट ट्रू है या एल्स के अंदर का स्टेटमेंट। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है तो इट गो टू द नेक्स्ट एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, लाइक दैट इफ एल्स इज देयर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है इफ x इज ग्रेटर देन 0 रिस्पांस डॉट राइट पॉजिटिव, एल्स रिस्पांस डॉट राइट नेगेटिव। आगे इफ एल्स इफ, इसमें मल्टीपल कंडीशन जैसे स्विच केस में होता है। So when we have to check multiple condition, you have to use if else if statement। So यहाँ कैसे दिया है if else, देखो एग्जांपल में, if a greater than b and a greater than c, response dot right a is greater than। else if
else if continue, else if is a one word, E capital, okay, E capital. If again B greater than A and then B greater than C, responder B is greater than, okay, else एक लास्ट में else आएगा. इफ एल्स इफ के सिंटैक्स में पहला स्टेटमेंट एक्सप्रेशन में हम लोग जब देंगे तब वो स्टेटमेंट ट्रू होगा, तो कंडीशन डायरेक्टली बाकी कंडीशन चेक करने की जरूरत. बट अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होगी तो गो टू द नेक्स्ट कंडीशन एल्स इफ. तो एल्स इफ में देखो यहाँ एल्स इफ दिया है एक्सप्रेशन 2 स्टेटमेंट 2, फिर गो टू द नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट, लास्ट में एल्स था, लास्ट में एल्स जहाँ पे हम लोग को कंडीशंस कोई भी देनी नहीं है वहाँ अदरवाइज, तो एक डिफॉल्ट कंडीशन देना पड़ता है, वो डिफॉल्ट कंडीशन हम लोग लास्ट में एल्स, एल्स इफ की जगह एल्स. नेक्स्ट स्विच केस भी है, स्विच केस, स्विच एक्सप्रेशन इज ट्रू, जैसे याद है स्विच एक्स केस 1 रिस्पांस डॉट राइट 1, 1 इज अ कंडीशन, इसका मतलब है इफ x इक्वल टू 1, इसका मतलब है केस 1 का मतलब इफ x इक्वल मतलब 1 एक वैल्यू है वो चेक कर रहा है असाइंस विद द x इज इक्वल टू 1, चेकिंग होगा, अगर वैल्यू 1 है तो रिस्पांस करेगा 1, अगर नहीं है तो एक अनदर स्टेटमेंट इज शोन ओवर हियर टू गो टू द नेक्स्ट कंडीशन. स्विच के अंदर एक कंडीशन केस 1 से केस 2 में जाने के लिए पहले ब्रेक लिखना पड़ता है, ब्रेक हो गया तो गो टू द नेक्स्ट वैल्यू, x इज इक्वल टू 2 रिस्पांस डॉट राइट 2. तो यहाँ अपना सिंटैक्स देखो, स्विच ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल आएगा, कर्ली ब्रैकेट होगा, केस स्पेस 1 होगा, कोलन, फिर आपका रिस्पांस डॉट राइट स्टेटमेंट होगा. स्टेटमेंट अगर आपको कंडीशन फॉल्स होने के बाद नेक्स्ट कंडीशन में जाना है तो ब्रेक होगा, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 लाइक दैट, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, लास्ट में डिफॉल्ट और डिफॉल्ट स्टेटमेंट. अगर कोई भी 1 और 2 भी नहीं है तो रॉन्ग एंट्री करके आपको डिफॉल्ट. हमारा C++ में हो ही चुका था, इस रिवाइज. नाउ लूपिंग स्टेटमेंट, when you want to repeat any statement, so that time we use the looping statement. Initialize in the while loop, do while loop, for loop. For it, we have to initialize the starting point, give the condition, terminating point, and after that increment value. तो यहाँ पे while, do while और loop तीनों का यूज एक ही है, लेकिन तीनों को डिक्लेयर करने का स्टाइल, डिफाइन करने का स्टाइल अलग है. जैसे while loop में पहले इनिशियलाइज किया जाता है i is equal to 1, while I less than equal to 10, condition, terminator value, curly bracket, inside that any statement is there that is repeat again and again until condition is true, and if condition is false you go out of the statement. Condition false करने के लिए you have to increment by 1 या increment by 2, और हम लोग को increment करना रहेगा तो i plus plus, that is increment. I का वैल्यू 1 है, 1 शो करेगा रिस्पांस डॉट राइट 1, नेक्स्ट टाइम i का वैल्यू 2 होगा. ऐसे इसके अंदर जितने स्टेटमेंट रहेंगे वो रिपीट करेगा until कंडीशन इज ट्रू. ये होगा while का स्टेटमेंट. while इज अ एंट्री कंट्रोल, एंट्री में ही चेक हो रहा है, लेकिन do while में वैसे नहीं. do में i इज इक्वल टू 1 तो 1 शो कर रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है तो 2 को चेक हो रहा है, 1 को चेक ही नहीं हो रहा है, उसका मतलब इट इज एग्जिट कंट्रोल लूप. तो उसमें भी इनिशियलाइज पहले किया जाता है, i इज इक्वल टू 1, फिर do कर्ली ब्रैकेट में स्टेटमेंट डिस्प्ले होता है, रिस्पांस डॉट राइट एनी स्टेटमेंट यू कैन राइट होगा, फिर इंक्रीमेंट. तो सेकेंड कंडीशन से सेकेंड वैल्यू से उसको चेकिंग करना, पहले वैल्यू का चेकिंग नहीं होता, उसी को बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल, जाते जाते चेक करना. तो दैट इज कर्ली ब्रैकेट के बाद चेक होगा व्हाइल i लेस देन इक्वल टू. फॉर लूप सबसे इजी, तीनों पार्ट एक साथ डिक्लेयर करते हैं. फॉर i इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन, i लेस देन इक्वल टू 10 सेमीकोलन i प्लस, इसका मतलब इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट तीनों एक साथ. तो वो अपने आप अंदर के स्टेटमेंट स्टार्टिंग से कंडीशन वाइज जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो दिखाते रहेगा, जब आपका कंडीशन इंक्रीमेंट के बाद फॉल्स हो जाएगा तो वो बाहर आ जाएगा. व्हाट इफ ऑल ऑफ यू, इफ, डू while, for loop हो गया? यस स्टूडेंट, हेलो. यस सर. यस सर. स्पेशल लूपिंग स्टेटमेंट में दिया है फॉर ईच, ये फॉर ईच इसके अंदर है, बाकी किसी में नहीं था. तो फॉर ईच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू लूप थ्रू एरे. एरे के अंदर अगर मुझे कुछ वैल्यूज डिक्लेयर करना है, लूपिंग करना है, तो मुझे फॉर ईच लेना पड़ेगा. फॉर ईच में सिंटैक्स, और देखो फॉर ईच में एरे एज अ वैल्यू, तो फॉर ईच में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले एरे डिक्लेयर किया इधर, int इनिशियलाइज द एरे, क्या दिया है हम लोगों ने, int arr1 इज इक्वल टू 1 2 3 5 डिक्लेयर किया,
फिर दिया है फॉर ईच इन द ब्रैकेट int x, तो x इज द एरे वेरिएबल, x इन अ एरे, तो हम लोग लिखते कैसे देखो, int x वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इन ARR11, मतलब एरे के अंदर हम लोग फॉर ईच यूज करते हैं। तो फॉर ईच का मतलब है इट विल रिपीट अगेन एंड अगेन फॉर ईच वैल्यू एंड चेक दैट कंडीशन कुछ भी नहीं, इंक्रीमेंट कुछ नहीं, अपने आप वाला वैल्यू होने के बाद दूसरा तीसरा चौथा एरे खत्म हो गया, बाहर आ गया। तो for each statement is used to loop through array. Got it? Yes, student? Hello? Yes, student? Hello? Are you clear? Yes, sir. Oh, okay. Now array में indexing part बताया है. Array are index list of variables stored in a single array type variable. Each element in array is associated with the index value. Of course, 0 से index start होता है. Array index value starts with the default from 0. It helps to store the value in a consecutive memory location. तो array के बारे में कुछ लिखने आया तो ये सारा चीज लिखना पड़ेगा. What is array? Array is the index list of one value which can store single array type variable. Each element in the array is associated with an index. It is used to array members. अरे ये क्या हो गया, एंड हो गया, okay. Now we can say the part of that. Each element in the array is associated with an index value which is used to access the member variable, and index always starts with the default value 0. It helps to store the value in consecutive memory location. ये लिखना पड़ेगा. फिर syntax int array bracket square bracket array name is equal to new int5. तो array हम लोग नया बना रहे हैं, कुछ वैल्यू असाइन नहीं किया, वैल्यू असाइन यहाँ पर int myArray is equal to curly bracket में array. Got it? Yes, student? Hello? Single Yes, array, sir. that is 5 value single array. अगर मल्टी डायमेंशनल है तो 2 स्क्वायर ब्रैकेट है. ओके, न्यू जैसे डबल देखो ब्रैकेट के अंदर कॉमा आएगा तो 2 डबल एस डिटेल स्टूडेंट डिटेल इज इक्वल टू न्यू डबल 3,4 3,4 मतलब 12 वैल्यूज 3 rows and 4 columns. Got it? Yes, student? Multi dimensional. yes, sir. Yes, sir. Okay. After that, we can see the new points method. What is method? So method is a group of statements that together perform a task. Okay, method एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, जैसे मैंने बोला फंक्शन, C++ में फंक्शन है तो यहाँ पे हम लोग मेथड बोलते हैं, जावा में मेथड बोलते हैं, तो C# में भी मेथड बोलते हैं. तो इट इज ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट. वन स्टेटमेंट का मेथड नहीं होता, बहुत सारे स्टेटमेंट अगर एक साथ बिल्ड करने तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2 स्टेटमेंट का ग्रुप बनाते हैं. इसलिए ऊपर हम लोग फंक्शन मेथड को डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, एंड देन ओनली वी यूज इट, कॉल इट एनीवेयर इन द प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम आल्सो. सो डिफाइन एंड कॉल द मेथड, defining, calling method and passing parameter to the method, delegates, ये सारी चीजें आती हैं. So every C# program has at least one class with a method named main. At least आप लोगों ने कुछ भी मेथड नहीं डिक्लेयर किया तो एक मेन मेथड हमेशा हो. What is that main method? Main method execute first. आपको पता है कुछ भी नहीं डिक्लेयर किया तो एक क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लोग देते हैं ना, वैसा ही यहाँ मेन मेथड होता है. तो आप फर्स्ट मेथड के पार्ट है. Method में define the method and call the method. So when you define method, you basically declare the elements of its structure. इसका structure होता है, क्या क्या declare करते हैं देखो. define access specifier, return type, method name and bracket के अंदर parameter list and curly bracket में method body. ये syntax है. तो अभी ये सारी चीजें मैं explain करता हूँ with example. देखो static, specifier, constant method, int डेटा टाइप, मैक्स फंक्शन नेम, मेथड नेम हम लोग यहाँ मेथड ही बात करेंगे. मेथड नेम इन द ब्रैकेट int a, int b, 2 पैरामीटर वैल्यू डिक्लेयर. कर्ली ब्रैकेट we declare the statement, whatever statement are built together with the max method. Curly bracket close, method close, and we call that this is defining part. We are defining the one class max करके है, तो मैक्स और ये मैक्स अलग है. क्लास देखो एम कैपिटल है और इधर स्मॉल है, तो ये मेथड और क्लास का नाम अलग अलग है.
इस मैक्स में हम लोगों ने जो भी स्टेटमेंट डिक्लेयर किया, वी कॉल इट विद द वन वैल्यू INT-C। देखो उधर INT था तो इट स्टोर द वैल्यू, रिटर्न वैल्यू C इज इक्वल टू मैक्स 10,20। ये दो वैल्यू हम लोग पास कर रहे हैं, वी आर पासिंग दैट वैल्यू। फिर वो चेकिंग हो रहा है, इफ A इज ग्रेटर देन B, 10 इज ग्रेटर देन B 20, तो रिटर्न है, होगा तो, नहीं है तो रिटर्न B। तो 10 ग्रेटर देन 20 है, नहीं है, तो आपका आंसर B 20 मैक्स के अंदर स्टोर होगा, मतलब C के अंदर 20 वैल्यू स्टोर होगा और रिस्पॉन्स करेगा ग्रेटर नंबर प्लस C। प्रोग्राम समझ में आया? यस स्टूडेंट, हेलो, Yes, sir. yeah, this Yes. way we have to use the method in a class. Okay, yes student, any doubt, any student doubt? Basic syntax, पहला syntax है ये, class declare करना, method declare करना। yes Yes, sir. okay, now after that passing parameter to the method, हम लोग पैरामीटर जो पास करते हैं उसमें वैल्यू पैरामीटर, रेफरेंस पैरामीटर एंड आउटपुट पैरामीटर। तो वैल्यू पैरामीटर क्या है? वैल्यूज आर कॉपीड लोकली इनसाइड द फंक्शन, जो सो एनी चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन, जो भी चेंजेस करने हैं वो फंक्शन वैल्यू पैरामीटर हमेशा वैल्यू ले। लेकिन रेफरेंस में एंड पॉइंटर होता है ना, रेफरेंस, तो रेफरेंस आर्गुमेंट इज द पास एनी चेंजेस मेड इनसाइड द, तो हम लोग वो पासिंग वैल्यू कर। और आउटपुट पैरामीटर असाइनिंग वैल्यू, सिंस फंक्शन कैन वैल्यू रिटर्न वन वैल्यू इन अ सिचुएशन वेयर वी नीड टू रिटर्न मोर देन वन वैल्यू, एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करना है तो आउटपुट पैरामीटर। तो ये तीन पैरामीटर मेथड के अंदर होते हैं। सो व्हेन मेथड विद अ पैरामीटर इज कॉल्ड, you need to pass the parameter value to the method. Got it? Next, अभी कंसेप्ट मेथड के रिलेटेड आया, मेथड ओवरलोडिंग। मेथड मेथड का नाम अगर सेम लिया तो मैक्स मैक्स दोबारा लिया तो मेथड ओवरलोड होगा। सो इट सपोर्ट्स, C# supports the overloading. We have the same function name but performing different operation. फंक्शन मेथड का नाम सेम है बट ऑपरेशंस आर डिफरेंट, so it cannot overload, उसी को बोलते हैं मेथड ओवरलोड। इट कैन नॉट बी ओवरलोड बिकॉज उस दोनों के काम अलग अलग है, भले फंक्शन मेथड का नाम सेम है बट दोनों के काम अलग अलग है, इट परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑपरेशन, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी ओवरलोड। सो वी कैन यूज द सेम नेम टू द गेट डिफरेंट आउटपुट। जैसे सम ऑफ 2 नंबर्स, सम ऑफ 3 नंबर्स, सम ऑफ 4 नंबर्स, ऐसे ले लें, या सम ऑफ sum of integer number, sum of float number, sum of decimal number, concatenation of the two strings, so all things are there related। जैसे एग्जांपल दिया है, या दो फंक्शन मेथड नेम है सम, दोनों में सेम नेम है तो दोनों ओवरलोड होनी चाहिए, लेकिन ओवरलोड नहीं होगा क्योंकि एक तो आपका डेटा टाइप अलग है या पैरामीटर अलग है, डेटा टाइप भी अलग है और पैरामीटर। देखो यहाँ INT दिया, या फ्लोट का, तो यहाँ इंटीजर का एडिशन होगा या फ्लोट का एडिशन। गॉट इट? यस स्टूडेंट, हेलो हेलो, Yes, sir. Yes. okay, so this is the method. If you want to get the 5 marks method का explanation, so you have to explain all that thing, method all that। के पहले मेथड के बारे में, पैरामीटर के बारे में, फिर मेथड ओवरलोडिंग के बारे में एक दो लाइन में लिख के खत्म। नाउ डेलीगेट्स, न्यू थिंग्स। Delegates is the reference type which allow indirect call to method। हम लोग indirectly method को कॉल करते हैं, उसी को delegate रेफरेंस टाइप बोलते हैं, इसको हम लोग रेफरेंस टाइप हम लोग किसी का रेफरेंस देते हैं मेथड का तो उसको delegate बोलते हैं। तो delegates are a reference type which allow indirect call to method। तो delegate instance hold a reference to some number of method। delegate का जो इंस्टेंट ऑब्जेक्ट बनेगा वो बहुत सारे मेथड का सम नंबर ऑफ मेथड के कुछ नंबर्स रेफरेंस के लिए रखते हैं, इंडेक्सिंग रखता है। सो इट बाय इन्वोकिंग delegate one causes all of these methods to be called। एक साथ हम लोग उसको कॉल कर सकते हैं। यूजफुलनेस क्या है? तो इट लाइज इन द फैक्ट दैट द फंक्शन which invoke them are built to underlying method। मतलब it will invoke, when it will invoke, जब उसको, जैसे हम लोगों ने कैलकुलेटर में 2 नंबर का एडिशन दिया तो 2 नंबर ऐड, 3 किया तो 3 आए, 4 किया तो 4 आए। अगर रेफरेंस होता था तो हम लोग ने जितने नंबर दिया है उतना वही मेथड यूज होगा, एडिशन, लेकिन वो डेलीगेट्स के इसमें। तो फर्स्टली डेलीगेट्स आर रेफरेंस टाइप rather than value type, and secondly single delegates can reference multiple method। एक delegate बहुत सारे multiple methods का रेफरेंस बन सकता है। यहाँ delegate कैसे डिक्लेयर किया है, क्या है बताएंगे।
पब्लिक, डिलीगेट, void फंक्शन का नाम, मेथड का नाम, एंड देन पैरामीटर वैल्यू पास। ओके, सो यहाँ पे दूसरा मेथड भी अगर हम लोग देना है तो प्रिंट, डिलीगेट, वेरिएबल, न्यू पॉइंट फंक्शन, डिलीगेट मेथड। यहाँ मल्टीकास्टिंग भी हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग एक रेफरेंस से बहुत सारे मेथड को क्या कर सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड डिलीगेट। तो डिलीगेट यहाँ देख सकते हैं सम डिलीगेट टर्म्स, मल्टीकास्ट डिलीगेट। It can simultaneously reference multiple methods, simultaneously, one by one, switching, एक ही पॉइंटर बनाएंगे और एड्रेसिंग, जैसे हमारा वर्चुअल फंक्शन होता था, it can give the reference to many other different methods। वैसे यहाँ पे delegate दिया है, it delegates can give the reference to multiple। This delegate must like our point function delegate specify void real time। So this method invocation is done an event and the running of the method is the handing of the event। Any typical example of event जैसे एक माउस इवेंट, कीबोर्ड इवेंट, वो स्पेसिफाई है। तो इट यूजर सिलेक्शन ऑफ बटन, आप बटन का क्लिक करोगे ऑन अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दिस एक्शन में ट्रिगर नंबर ऑफ मेथड। आप क्लिक करने के बाद नंबर ऑफ मेथड्स विल बी एग्जीक्यूट। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द मेनी मेथड्स रेफरेंस विद द वन डेलीगेट। इज इट क्लियर? हेलो हेलो, यस या सर। उसके लिए एक इवेंट कीवर्ड है। इवेंट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर पर्टिकुलर मल्टीकास्ट डिलीगेट। इवेंट कीवर्ड से हम लोग को डिक्लेयर कर सकते हैं। देखो यहाँ एग्जांपल में दिया है आपको, डिलीगेट वॉइड मेन इवेंट int xy। तो डिलीगेट बनाया मेन मेथड के लिए, फिर स्टैटिक वॉइड फंक्शंस डिफाइन किया इन फंक्शन 1, स्टैटिक वॉइड फंक्शन 2 डिफाइन किया। अभी आप देख सकते हो बटन 1 करके क्लिक हम लोग इवेंट बना, तो वहां पे बटन 1 क्लिक के अंदर मेन इवेंट में जो ऊपर डिक्लेयर किया था डिलीगेट, उसको फंक्शन में न्यू इवेंट फंक्शन, तो न्यू इवेंट क्रिएट हो गया फंक्शन 1 के लिए बटन 1 का क्लिक। आगे फंक्शन के अंदर ऐड कर रहे हैं फंक्शन प्लस इक्वल न्यू मेन इवेंट फंक्शन, मतलब क्या कर रहे हैं डिलीगेट के अंदर और एक मेथड को मल्टीकास्टिंग कर रहे हैं। तो इसके बदले मल्टीकास्टिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, मेन इवेंट के अंदर और एक फंक्शन एग्जीक्यूट, फंक्शन 1 का वैल्यू, फंक्शन 2 का वैल्यू, दोनों एक साथ एग्जीक्यूट होंगे जब हम लोग बटन 1 पे क्लिक करेंगे। व्हाट इज, उसको माइनस भी, नेगेशन भी कर सकते हैं। तो फंक्शन माइनस इक्वल टू न्यू सम इवेंट, हम लोग माइनस करेंगे, दूसरे इवेंट में भी फंक्शन में माइनस भी कर सकते हैं। इस तरह जो प्लस माइनस ऑपरेटर यूज हो रहा है वो किसके लिए यूज हो रहा है बताएं। दिस ऑपरेटर आर यूज्ड टू ऐड, प्लस इक्वल के लिए ऐड के लिए, देखो एडिंग किया फंक्शन 1 को फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को ऐड किया, 1 ऑलरेडी इवेंट में था, अभी 2 भी ऐड हो गया। तो एंड रिमूव करना है तो माइनस इक्वल, इट रिमूव द डिलीगेट्स। व्हाट इट, तो हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव। सो ईच डिलीगेट हैज एन इनवोकेशन लिस्ट, ये लिस्ट में। व्हाट इट, तो फर्स्ट चैप्टर ऑफ द यूनिट इट इज ओवर। देयर आर सम रिवाइव क्वेश्चंस इज गिवन, रिव्यू दिया है। एक आप .NET फ्रेमवर्क के बारे में पूछ सकते हैं, व्हाट इज .NET वर्मा, शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस ऑन .NEट फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर। फिर टाइप कास्टिंग, गिव एग्जांपल बताएं, डिलीगेट विद एग्जांपल, लूपिंग स्टेटमेंट, एक्सप्लेन एनीवन विद द एग्जांपल, नोट कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, ओके विद एग्जांपल और सिंटैक्स, ऐसे। तो ये इंपॉर्टेंस है, आपका समझ लो, यही पार्ट उन्होंने फर्स्ट चैप्टर में क्लियर। तो फर्स्ट इट वाज ओवर, क्लियर first chapter. Now second. Hello, hello, hello. Yes, sir. Unit मैं theory कर रहा हूँ। I am already done many practical over there. AWP का practical हो चुका है बहुत सारे, ऑलरेडी हम लोग 4th यूनिट तक पहुंच चुके हैं प्रैक्टिकल में। बट हम लोग को थ्योरी क्या करना है, लिखना क्या है, वो इसके लिए मुझे बताओ। मुझे AWP में एक भी स्टूडेंट फेल हुआ चलेगा नहीं। तो आपकी मर्जी है, जो स्टूडेंट रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं उनका प्रेजेंसी ऐसा रहना चाहिए कि आप लेक्चर सुन रहे हो, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो। चलो नेक्स्ट। सो नेक्स्ट वन, और बहुत सारे जो नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट बनाओगे वो आप लोग का प्रोजेक्ट मोस्टली .NET पे होगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि .NET पे वेबसाइट बनाना बहुत इजी भी है और लेकिन ज्यादा एलाबोरेट करके बहुत अच्छा वेबसाइट आप बना सकते हो अगर आपको लैंग्वेज समझ में आती है। सो मैं स्पेसिफाई करूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स रियल एप्लीकेशन IoT में जा रहे हैं, लेकिन आई थॉट रियल एप्लीकेशन रेडीमेड मिलता है,
और मैं रेडीमेड को प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि प्रोजेक्ट इज अ वन टाइम यू हैव टू डू इन लाइफ, राइट? यस स्टूडेंट, प्रोजेक्ट एक बार ही बनाया जाता है लाइफ में। जैसे मैंने एमसीए का मेरा खुद का प्रोजेक्ट मैंने लाइब्रेरी मैनेजमेंट में का बनाया है, तो मैं आई एम हैप्पी विद दैट बिकॉज मैंने खुद ने बनाया। तो खुद ने जो प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो उसका आपको हैप्पीनेस और इम्पोर्टेंस ज्यादा है। तो रेडीमेड प्रोजेक्ट मत लो, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप खुद प्रोजेक्ट बनाओ, और मोस्टली .NET और जावा पे ज्यादा बनाओ, ओके? क्योंकि वो आपके बेस्ट लैंग्वेज है TY पे, यस सर। ओके? क्योंकि बहुत जन रियल एप्लीकेशन ले रहे हैं, IoT में कर रहे हैं, वो रेडीमेड आई डोंट नो हु इज गिविंग, बट आपको मैंने देखा है सारे लिस्ट में नाम थे, तो वो सारे ज्यादातर IoT के थे। तो मेरे ख्याल से रियल एप्लीकेशन आजकल रेडीमेड मिलता है, कार, ड्रोन, आपका हाँ। वेदर फोरकास्टिंग सब रेडीमेड मिल रहा है। आप क्या कर रहे हो? खुद कुछ भी नहीं कर रहे, खुद खाली कोडिंग के अंदर देख के वैल्यू चेंज कर रहे हो और बस हो गया मेरा प्रोजेक्ट, बट यू आर नॉट डूइंग वन। वेबसाइट कैसा रहता है? खुद करते हैं, उसमें क्रिएटिविटी खुद बना सकते हैं। हाँ, अगर रियल एप्लीकेशन के साथ वेबसाइट का कुछ काम कर रहे हो, एप्लीकेशन बना, तो आई एम हैप्पी, बट यू हैव टू डू ओन। मुझे ऐसा नहीं बताना कि IoT यू डोंट डू इट, हम लोग को ये बताना है कि आप खुद प्रोजेक्ट करो। इतने सारे लैंग्वेज बना रहे हो, कर रहे हो, तो आप क्यों नहीं खुद प्रोजेक्ट? C++ में गेम भी बनाया ना, आई एम हैप्पी। C++ में कुछ रियल एप्लीकेशन क्लियरली बनाया है, नया एप्लीकेशन जैसे कोई इंडस्ट्री का सॉफ्टवेयर बनाया, तो आई एम हैप्पी। .NET में बनाया, वेबसाइट बनाया एक वाला, तो आई एम हैप्पी। जावा में वेबसाइट का कुछ प्रोविजन किया, एप्लीकेशन का प्रोविजन किया, आई एम हैप्पी, बिकॉज दिस इज योर बेस्ट लैंग्वेज इन TY। IoT रेडीमेड ले रहे हो, ठीक है, लेकिन उसको खुद अगर इंटरेक्टिंग करके प्रॉपरली खुद कर रहे हो तो अच्छा है। आप रेडीमेड लेके बना रहे हो, तो आई एम नॉट हैप्पी विथ योर प्रोजेक्ट, बिकॉज लाइफ टाइम में एक ही बार प्रोजेक्ट बना सकते हैं TY में, बाद में कौन पूछता नहीं है। अगर MSc IT किया तो सेकेंड टाइम, अदरवाइज कोई कुछ बनाता नहीं है। लाइफ में रियल करना है तो अभी चांस, ठीक है? चलो, एनीवे वी गो थ्रू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द यूनिट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. It is a programming model where program are organized around the object and data rather than action and logic. Of course, OOP का concept ही यही है. We have to create your own object and we have to give the actions of logically. So OOP allows the decomposition of a problem. जैसे प्रोग्राम को डिवाइड करना, जब बड़ा लार्जर प्रोग्राम मेन मेथड में 500 लाइंस का होगा तो इट गेट कंफ्यूज, और डिबगिंग के लिए भी प्रॉब्लम होगा, यूजर के लिए, डेवलपिंग के लिए. दैट्स व्हाई इट डिकम्पोजिट ऑफ द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ एंटिटीज. उसको अलग अलग ऑब्जेक्ट में डिवाइड किया जाता है मॉड्यूल वाइज, तो उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं. तो ऑब्जेक्ट build the data and functions around this object. मतलब object class is the object. Okay, class is the instance of a object. Instance of a class क्या बोलेंगे? Object. So it builds the data member and function together. That becomes the object. तो सबसे पहले उन्होंने दिया classes. It is a user defined data type. आपका user defined data type है, ये भी एक data type है. And it is only a logical representation. इसके अंदर हम लोग data member और methods together build करते हैं. It helps to link member variables and methods. ये आपके member data member को और methods को link करता है class. इसलिए dot object name dot and your method. जैसे inbuilt अभी object देखा, convert dot to int 16. इसका मतलब convert is already built-in object है. Dot प्रॉपर्टीज के अंदर मेथड के अंदर मेथड दिया टू int और उसके अंदर पैरामीटर पास नहीं. क्लियर? सो ऑब्जेक्ट्स आर बेसिकली इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. ऑलरेडी बताया मैंने, ऑब्जेक्ट क्या है? इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. इट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रियल टाइम एंटिटी. जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास होगा उसी का नया क्लास बनाना मतलब ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट में कुछ उप में कंसेप्ट आते हैं, दैट इज एनकैप्सुलेशन, बाइंडिंग द डेटा टुगेदर, एब्स्ट्रैक्शन, data member separation, polymorphism, reusability of the method overloading, या क्या बोलते हैं उसको, operator overloading, या runtime polymorphism, virtual function. These are all the polymorphism. Okay, reusability of the method, that is for many forms. Methods should be in the many form. Sum of two numbers, sum of three numbers, sum of integers, sum of float, polymorphism.
It depends on the compile time or depends on the run time. Run time में क्या और compile time में क्या value pass करते हैं उसके ऊपर. So these are the three concepts are given. Encapsulation, wrapping up the data member and methods together into single unit. Binding data member and methods together, उसी को हम लोग data encapsulation. और class is a using encapsulate. So it is a like a capsule the data. जैसे capsule the data encloses the related operation and data related to object into one object. It is a technique used to protect information in an object from another object. So hide the data for security, such as making the variable private and expose the property to access the private data that will be public. अगर हम लोग ने outside class के दूसरे class के अंदर data member use करना है तो we have to declare the public. अगर private किया तो it is used only within this class. So these are all specifiers: private, protected, public. That is it. Encapsulate करते वक्त specify करना. फिर abstraction. It helps to represent the essential feature without representing the background details. It helps to focus what object does instead of the how it does it. इसका मतलब हम लोग उसको डेटा मेंबर्स को वैल्यू देंगे, डेटा को वैल्यू दे रहे हैं, उसके अंदर कैसे वो वर्कआउट प्रोसेस क्या हो रहा है वो वैल्यू नहीं दे रहे. डेटा मेंबर्स क्या है, इंटीजर, फ्लोट, फ्लाइट, उसके डेटा मेंबर को हम लोग दिखा रहे हैं. इट हेल्प्स टू रिप्रेजेंट द एसेंशियल विदाउट रिप्रेजेंट द बैकग्राउंड डिटेल. उसके बैकग्राउंड में क्या यूज करने वाले वो पता नहीं, बट इट स्पेसिफाई द फोकस ऑन व्हाट ऑब्जेक्ट वी आर यूजिंग. इट गिव्स जनरलाइज्ड व्यू ऑफ योर क्लासेस, providing relevant information. And abstract, what is abstract? The process of hiding working style. हम लोग हमारा कोड बैकग्राउंड जो भी है स्टाइल वो हाइड कर रहे हैं और इट शोइंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द ओनली ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप, ऑब्जेक्ट मेंबर्स, पैरामीटर, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट. दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन मेथड और एब्स्ट्रैक्शन डेटा. उसके बाद आता है पॉलीमॉर्फिज्म. इट इज अ वन नेम एंड डिफरेंट फॉर्म, मेनी फॉर्म्स. एक नाम के बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाना, बहुत सारे मेथड्स बनाना, उसको हम लोग ने मेनी फॉर्म्स में वैल्यूज यूज करना, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. जैसे हम लोग ने बोला टोटल नंबर ऑफ 2 नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ 3 नंबर्स, तो वो हो गया डिफरेंट फॉर्म्स में डेटा एग्जीक्यूट करना. इंटीजर वाला, फ्लोट वाला, डेसिमल वाला. सो बिहेवियर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ डेटा यूज इन द ऑपरेशन. जैसे एडिशन ऑफ 2 न्यूमेरिक वैल्यूज रिजल्ट इन सम, बट एडिशन ऑफ द स्ट्रिंग रिप्रेजेंट द कॉन्केटेनेशन ऑफ द 2 स्ट्रिंग. 2 नंबर डिजिट दिए तो ऐड मेथड में 2 डिजिट का एडिशन हुआ क्योंकि नंबर वैल्यू ऐड होते. लेकिन 2 स्ट्रिंग वैल्यू दिए तो उस एडिशन मेथड में स्ट्रिंग वैल्यू ज्वाइनिंग कॉन्केट, ऐसे इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. वन मेथड यूज्ड फॉर मेनी फॉर्म्स, reusable. Got it? So these are the 3 concepts they are given for the hook. Clear? Yes, student? Hello? Yes, sir. Hello? Yeah. Now new concept is their class. Classes interact with each other with the help of these key ingredients. और हमेशा हम लोग क्लासेस इंटरेक्ट करता है किससे, हम लोग ने प्रॉपर्टीज से, मेथड से इंटरेक्ट करता है. तो प्रॉपर्टीज क्लास, जैसे ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी हेल्प टू एक्सेस एन ऑब्जेक्ट डेटा. जैसे क्लास का, तो क्लास एबीसी ऊपर डिक्लेयर, डेटा मेंबर इंट ए, तो एबीसी डॉट ए इज इक्वल टू 10. इसका मतलब एबीसी क्लास का नाम है, डॉट ए इज अ डेटा मेंबर इक्वल टू वैल्यू. सम प्रॉपर्टीज में बी रीड ओनली, सम प्रॉपर्टीज दे कैन नॉट बी मॉडिफाइड, सम प्रॉपर्टीज व्हाइल अदर्स कैन बी चेंज. तो ऐसे सम प्रॉपर्टीज सारे रीड ओनली होते हैं, कुछ मॉडिफाइड नहीं होते, कुछ चेंज होते. तो ये प्रॉपर्टी हम लोग प्रॉपर्टी जैसे बैक कलर, form 1 dot back color is equal to color name hash hexadecimal value hash ff0000. इसका मतलब हम लोग बैकग्राउंड कलर क्या करना चाहते हैं. बैक कलर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्म. फॉर्म 1 का कैप्शन चेंज करना, टेक्स्ट बॉक्स का कैप्शन, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, तो डॉट टेक्स्ट इज अ प्रॉपर्टी. व्हाट इट. नेक्स्ट मेथड. मेथड अलाउ यू टू परफॉर्म एन एक्शन. मेथड ब्रैकेट के अंदर आता है, सिंपल ब्रैकेट. तो मेथड अलाउज यू टू परफॉर्म एन एक्शंस होती है. जैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, तो ऑब्जेक्ट के साथ हम लोगों ने वैल्यू लिया और डॉट स्क्वायर रूट, वो स्क्वायर रूट फाइंड आउट. सो अनलाइक प्रॉपर्टीज, मेथड आर यूज्ड फॉर एक्शन दैट परफॉर्म अ डिस्टिंक्ट टास्क और may change the object state significantly.
का मतलब प्रॉपर्टीज और मेथड जो यूज करते हैं एक्शन के लिए परफॉर्म डिस्टिंक्ट अलग अलग काम, इसीलिए हम लोग वो प्रॉपर्टी मेथड अलग अलग काम के लिए यूज करते हैं. इट में चेंज द ऑब्जेक्ट स्टेट, इसलिए इसके मतलब हमारा ऑब्जेक्ट भी वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाता है. इवन क्लास के अंदर इवेंट्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे वो ऑब्जेक्ट को एक्शन ट्रिगर करने के लिए इवेंट यूज करते हैं. इवेंट्स प्रोवाइड नोटिफिकेशन दैट समथिंग हैज हैपेंड. माउस इवेंट, कीबोर्ड इवेंट, ऑन बटन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन कीबोर्ड इवेंट, की प्रेस, ये सारे इवेंट. नेक्स्ट, हाउ टू डिफाइन द क्लास. पहला, क्लास कैसे डिफाइन. क्लास इज डिफाइंड यूजिंग कीवर्ड क्लास. यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. Class definition start with the keyword class followed by the class name and class body enclosed with the pair of curly braces. आप देख सकते हो क्लास का नाम curly bracket और फिर डेटा मेंबर एंड मेथड्स and then curly bracket close. Next example, class number, data member is int xy, method is a public void get and after that define. class खत्म होने के बाद define किया है. ओके, तो ये यहाँ पे क्लास इन्होंने अच्छा सॉरी इनसाइड डिफाइन किया है. curly bracket open close that is get method, public void put that is open और लास्ट में curly bracket close that means class function is over. ओए ओके, हेलो हेलो, डेटा मेंबर एंड मेथड्स और क्लास समझ में आया. ओके, अभी इसके अंदर प्रॉपर्टी ऐड करना है, तो बोलिए. सर एक क्वेश्चन है सर, हम लोग अगर क्लास डिफाइन के लिए आया क्वेश्चंस, तो इसमें डिफाइंड एक क्लास भी करेंगे ना हम लोग. क्लास नंबर आए तो नंबर का ऑब्जेक्ट बनेगा. नंबर n इज इक्वल टू न्यू नंबर. ओके, और नंबर के साथ n डॉट गेट n डॉट पुट. ओके, हेलो, ओके सर. ओके, समझा. नंबर हाँ, sir. numb n is equal to new num open सिंपल ब्रैकेट क्लोज सिंपल ब्रैकेट सेमीकोलन. फिर उसके बाद कॉल कर सकते हैं n डॉट गेट एंड n डॉट पुट इन अ मेन मेथड. राइट. यस सर. ओके, नाउ आगे आने वाला प्रोग्राम देखो, आगे प्रोग्राम. ओके, देखो नाउ एडिंग प्रॉपर्टी. इफ यू डिक्लेयर द नंबर मेंबर एज अ प्राइवेट, अगर मैंने प्राइवेट डिक्लेयर किया तो इट इज अ व्हाट नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड. ये क्लास के बाहर नहीं डिक्लेयर असाइन हो या वैल्यू डिक्लेयर नहीं कर सकते या वैल्यू यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों ने प्राइवेट डिक्लेयर किया. लेकिन अगर पब्लिकली डिक्लेयर किया तो यू कैन यूज आउटसाइड ऑफ द क्लास. यहाँ पे देख सकते हैं मेंबर पब्लिक है, स्पेसिफाई किया, अदरवाइज इट इज बाय डिफॉल्ट प्राइवेट. पब्लिक int x, public int y, public int method also we are giving get return x, ये पब्लिकली हुआ. सेट, ओके, पब्लिक int, ये सारे मेंबर्स पब्लिक है, इसीलिए वो इट कैन बी यूज आउटसाइड ऑफ द क्लास आल्सो. ओके, लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है तो इस क्लास के बाहर वो यूज नहीं. इज इट क्लियर? दैट इज एक्सेसर, पब्लिक एक्सेसर, प्राइवेट एक्सेसर, प्रोटेक्टेड. प्रोटेक्टेड मेंबर्स कैन बी यूज ओनली बाय इनहेरिटेंस क्लास. जो इनहेरिटेंस होगा, इनहेरिटेंस आगे आएगा तब बताऊंगा. ओके, नेक्स्ट आगे कंसेप्ट है कंस्ट्रक्टर, न्यू उप कंसेप्ट. कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? मैंने क्या बताया था कंस्ट्रक्टर क्या? क्लास का सेम नेम, दो क्लास, अगर मेथड का नाम और क्लास का नाम सेम होगा, क्या बता रहे हैं, क्लास ऑब्जेक्ट नेम और मेथड उसके अंदर जो डिफाइन मेथड करेंगे उसका नाम सेम रहेगा, इट इज कंस्ट्रक्टर. इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड व्हिच इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज created. Special type of it. Okay, so name of constructor should be the name of class and it does not return any value. See, we cannot return when object called, it will invoke automatically. क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो constructor will invoke automatically. No need to call like n dot get, n dot put. Call करने की जरूरत नहीं. It will execute directly when you create object. Is it clear? Hello. जैसे example. Yes, sir. Class num curly bracket, then we can see int x comma y member variable, फिर public num declare here. This is constructor method, this is normal method get put. तो constructor कैसे हो गया? तो आप देख सकते हो your class name and method name is the same. Got it? Yes, sir. There are constructor, default constructor, parameterized constructor. Hello, hello,
Yes, sir. Mute yourself. Okay. Now default constructor and parameter. Default constructor does not have any parameter. Default constructor अभी ये default ही है, इसके अंदर कोई parameter specify value दिया नहीं. When you pass the value in the constructor method, तो उसको हम लोग parameterized constructor बोलते हैं. वैसे ही सेम डिस्ट्रक्टर. अभी लास्ट पॉइंट करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू. हमारा यहाँ तक 6 पेज तक हो चुका है, तो साथ में यूनिट 1 नेक्स्ट टाइम खत्म, फिर यूनिट 2 का कंटिन्यू. Destructor. Destructor is also special member of the class. That is same name of the class exactly, but you have to precede prefix with the tidal sign. एक negation sign देना. जैसे देखो क्लास ये कंस्ट्रक्टर हुआ और उसके आगे अगर negation sign दिया, negation, ओके, वहां पे किधर दिया नहीं है, रॉन्ग है, किधर है, नहीं दिया. अगर हम लोग ने निगेशन यूज किया होता था, दिया ही नहीं, यहाँ एक्चुअली निगेशन आना चाहिए. निगेशन नम, तो हम लोग को क्या हो जाता था, वो डिस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर कैन यूज मेनी टाइम. कंस्ट्रक्टर आप बहुत सारा डिक्लेयर असाइन कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, लेकिन डिस्ट्रक्टर यू हैव टू डिफाइन ओनली वन टाइम. ओके, इज इट क्लियर? ओके, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, सेम जस्ट लाइक नम क्लास होगा, उसके सामने खाली क्या देना पड़ेगा, टीडल. टीडल मतलब निगेशन, ऐसे negation. So it is can be neither return value nor it can be take any parameter. उस डिस्ट्रक्टर में पैरामीटर भी नहीं रहते, okay? पैरामीटर वैल्यू नहीं रहते. तो डिस्ट्रक्टर इज ऑल्सो डिस्ट्रक्टर. जैसे प्रोग्राम स्टार्ट करते हुआ वेलकम बाय कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर गुड बाय बाय द डिस्ट्रक्टर. लाइक देखो यहाँ पे आपका वो जो सवाल था, मेंबर कैसे बनेंगे, वो है नंबर, क्लास का नाम n इज इक्वल टू न्यू नंबर, या फिर n डॉट गेट एंड n डॉट पुट कॉल की. क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट टाइम 7 पेज से हम लोग नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे और आगे का पार्ट हम लोग क्लियर करेंगे. अभी टाइम खत्म होने को आया है, तो हम लोग ये आगे थोड़ा ही रह गया था, लेकिन हम लोग नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करेंगे. अभी अटेंडेंस, सो गिव मी अटेंडेंस, टुडेज अटेंडेंस. ओके, 110. एक मिनट AWP का, yeah. Now give me attendance. Roll number 1 to 10. 7. हेलो, आवाज नहीं आ रही. 7, 8. Okay. 7, 8. Fine. Next. 7, 8. 11 to 20. 13, 14. 16. 16. 13, 14, 16, 18. 20, sir. 20. 21 to 30. 22. 23, sir. 23. 28. 28, 29. 28, 29. Again. 22. 32. 31 to 32. 38. 33. 33. 21. 38. 21. Okay. 38. 38 है ना? Hello. Yes, sir. 38. 38. Okay, fine. Next. 43, sir. 43. 49. 43. 49. Sir, 38. 38 को किया नहीं आपने, 37 को किया. Okay. 44, sir. 43, 44, 49, 46. 46. Okay. 49. Now 51 to 60. 51 to last. Yes? Anyone? Okay. Fine. So 19 आ गए. हाँ, बराबर हुआ. 19 है तो 23 थे पहले, वो 23 2-3 स्टूडेंट छोड़ के चले गए. यही प्रॉब्लम है तुम लोग. फाइन, चलो नाउ Sir, कंटिन्यू. 2. 2. और कोई है बाकी? नहीं सर. Okay, चलो now next time we will continue this part related object and all that type spaces वगैरह है. थोड़ा ही बाकी है, तो हमारा ये यूनिट 1 का थ्योरी खत्म हो जाएगा. ओके, तो आई एम डूइंग नाउ थ्योरी. देखो इस तरह आएगा, .NET असेंबली,
क्लास, नेम स्पेस, असेंबली, इनहेरिटेंस, ये सारे हुक के कंसेप्ट वगैरह पूछेंगे। ये सारी चीजें हम लोग को नोट्स में आ सकती है, इसलिए वो सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ओके ओके। Hello. नाउ एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज आई एम हेलो सर हेलो। हम लोग को प्रोजेक्ट के बारे में पूछना था हम लोग का। या बोलो सर प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके रखना पड़ेगा क्या? ऑफ हाँ कोर्स सर, दिस अब इज तो अ इन्हीं में सॉफ्टवेयर है पर नहीं। एक मिनट, SPM इज गोइंग ऑन ना, नो सर। तो यू आर द पार्ट ऑफ द SPM। जो भी आपको अभी प्रोजेक्ट के रिलेटेड है वो SPM है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। वो डॉक्यूमेंटेशन 3 चैप्टर, 3 यूनिट, 4 चैप्टर आपके इसके अंदर आएंगे। और 5th और 6th जो सॉफ्टवेयर बनाना और कंक्लूजन, रेफरेंस, जो भी बिब्लियोग्राफी वगैरह देना, और नेक्स्ट टर्म में आएगा। फिर आपका ब्लैक बुक बाइंडिंग होता है, अदर होता है। तो आपको ये सारी चीजें है, तो वो सारी चीजें के लिए प्रिपेयर रहो। ओके, पहले से ही आपने प्रोजेक्ट ऑलरेडी सिलेक्ट किया रहेगा, मुझे पता नहीं। हाँ सर, हम लोगों ने सिलेक्ट किया। सर ने, मिस ने हम लोग को चैप्टर 1 चैप्टर 2 समझा दिया कैसे करना, बट चैप्टर 3 और चैप्टर 4 हमें हाँ कुछ नहीं सर, आइडिया है। चैप्टर 3 चैप्टर 4 मिस ने बोला थोड़ा टाइम बात करना। ओके हाँ फाइन, तो आई विल टॉक टू शेख सर, क्या करना है तो बता दीजिए, देन ओके हाँ सर। फाइन, थैंक यू। और कोई डाउट है? नो सर। थैंक यू। हाँ सर। सो थैंक यू आई लिविंग। आज का लेक्चर आपका YouTube लाइव पे था, आप डायरेक्टली ओके, देखा सर। ओके सर, यस, थैंक यू, थैंक यू Bye. सर। थैंक यू सर।